Hey friends, my name is Ritesh Agarwal and I'm back with another analysis of the Hindu for today, a new month, 1st of September, and a lot of stories to cover. So first let's take a look at which stories which are covering from our examinations perspective. Okay, topics for today: 9 Supreme Court judges take oath in one go for the first time. Government to make flexible engine mandatory, says our Minister of Road Transport and Highways, Mr. Nitin Gadkari. UNSC resolution addresses key concerns on Afghanistan. We'll understand about this UNSC resolution. Concerns over Afghanistan's membership in SAARC. Again, a very important issue. We'll talk about SAARC also. China opens first road rail transport link to Indian Ocean. A very interesting development from China. Ramon Magsaysay Awards are declared. We'll talk about Ramon Magsaysay Awards and winners. It's time to build BRICS better. This is from the editorial section where we are discussing that how we can make BRICS better. But this is not all. Today it's a news heavy day. Today's newspaper covers a lot more updates. So we have more coming to you. Economy grows 20.1% in Q1, lags pre-pandemic levels. So GDP data was released. We'll talk about this in detail. Pay you to buy BillDesk from the business. Triple delight for India at Paralympics. So we'll discuss then few updates from sports. So what's going on at Paralympics? Then Dale Steyn announces retirement. BCCI seeks bid for new franchises in IPL. Okay. So India's favorite tournament. Okay. So we will talk about all these in detail. Let's get started with the first one. Okay, today is going to be a very interesting day. Let's get started. In a first, 9 Supreme Court judges take oath in one stroke. Okay, this is the front page article. Okay, okay. Now what is special? देखो already we have been discussing this story since last few videos कि Supreme Court Collegium cleared 9 names, then the government approved it, then the president signed the warrants, and then finally yesterday all 9 judges took oath in the presence of Chief Justice of India Mr. N.V. Ramana. ठीक है, तो क्या खास बात है? पहली बार 9 जजेस ने एक साथ ओथ ली है सुप्रीम कोर्ट के. उसके अलावा क्या हो गया, इससे अब मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो गई है बारिंग 1 वैकेंसी. तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, तो अभी 33 जजेस हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में. इसमें एक और क्या खास बात है कि इस बार जो 9 जजेस का रिकमेंडेशन हुआ था उसमें 3 विमेन जजेस थी. उनमें से एक BV नागरत्ना इज स्लेटेड टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट इन 2027. और क्या खास बात है, टोटल ओवरऑल इन 33 जजेस में से 4 विमेन जजेस हो गई हैं, विच इज द हाईएस्ट एवर इन सुप्रीम कोर्ट. 3 जो अभी रिकमेंड हुई और एक जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो पहले से सुप्रीम कोर्ट पैनल में थी. ठीक है, and for the first time the court allowed a live telecast of the ceremony. पहली बार जो oath taking ceremony का live telecast भी हुआ. So a lot of firsts in this and that is why this story needs to be covered. इसके सारे जो point of views हैं हमने कुछ पहले की stories में भी discuss किए हैं. आपको एक छोटा नोट बना लेना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है. ठीक है, अच्छा. नितिन गडकरी साहब जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया ड्यूरिंग पब्लिक डिस्कशन के गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक फ्लेक्सिबल इंजन्स मैंडेटरी. फ्लेक्सिबल इंजन्स मीनिंग इंजन्स विच आर रनिंग ऑन बायोफ्यूल्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीने के अंदर हम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये मैंडेटरी कर देंगे कि दैट यू हैव टू ऑफर द व्हीकल्स विच कैन रन ऑन बायोफ्यूल्स. India will make it mandatory for auto manufacturers to offer vehicles running 100% on biofuels in next 6 months. Why? Because A, it is more cost effective. ठीक है, तो इथेनॉल क्या कॉस्ट करता है? बायो इथेनॉल कॉस्ट ₹65 a लीटर. ठीक है, पेट्रोल क्या कॉस्ट कर रहा है आज की तारीख में? ₹110 पर लीटर. तो पहली बात तो एंड कंज्यूमर के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है. दूसरा ऑब्वियसली एनवायरमेंट फ्रेंडली है. ठीक है, तीसरा फॉरेक्स बचाता है. क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, इथेनॉल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली द एनवायरमेंट मिनिस्टर the transport minister has said that within 6 months they will issue the guidelines and they will make it mandatory for auto manufacturers to offer vehicles which can run on biofuels like ethanol. Okay, interesting development related to science and technology and governance. Make a note. ठीक है. Okay, next update.
सो दिस इज नाउ फ्रॉम द फॉरेन स्फेयर, ठीक है। अगेन फ्रंट पेज आर्टिकल है इंटरनेशनल न्यूज में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन एड्रेसेस की कंसर्न्स ऑन अफगानिस्तान सेज इंडिया। तो आपको पता होगा कि इंडिया जो है इज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच मेरे को लगता है कि आपको पता होगी। दूसरी बात आपको शायद ये भी पता होगा कि इंडिया वॉज चेयरिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर लास्ट मंथ, अगस्त के महीने में वी वर द प्रेसिडेंट। ये ठीक है, रोटेशन बाय रोटेशन प्रेसिडेंसी घूमती है। तो इंडिया के पास लास्ट मंथ थी, अब आज से आयरलैंड के पास है। तो इंडिया ने इस दौरान एक की रेजोल्यूशन अफगानिस्तान सिचुएशन में पास किया। इस रेजोल्यूशन का क्या नाम है? यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593। इस रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान पहली बात तो विल नॉट शेल्टर टेररिस्ट, कि अफगानिस्तान की ज़मीन पर अफगानिस्तान पे कोई टेररिस्ट कैंप नहीं होने चाहिए, उनको कोई किसी तरह की मदद नहीं मिलनी चाहिए, कोई टेरर फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अफगान टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड टू थ्रेटन और अटैक एनी कंट्री और टू शेल्टर एंड ट्रेन टेररिस्ट, ठीक है। रेजोल्यूशन जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन का पहला क्लॉज, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज तो यही है। और उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया कि इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड बाय रेजोल्यूशन 1267 जो रेजोल्यूशन है उसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के टेररिस्ट लिस्टेड है। बोले ये लोगों को अफगानिस्तान में शेल्टर नहीं मिलना चाहिए। दूसरा उन्होंने एक क्लॉज पास किया है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है दे शुड अलाउ सेफ इवैक्यूएशंस, ठीक है। हिंदुस्तान के या बाहर के जो भी लोग हैं जो अफगानिस्तान, इवन अफगान लोग जो हैं जो अपने देश से बाहर जाना चाहते हैं, उनको एक सेफ इवैक्यूएशन देना चाहिए। तो ये रेजोल्यूशन इंडिया ने पास किया, यूएनएससी रेजोल्यूशन नंबर 2593। ऑब्वियसली जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, कौन से हैं परमानेंट 5 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो रशिया और चाइना ने इसे सपोर्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बट यूएसए, यूके एंड फ्रांस हैव सपोर्टेड इट। और इंडिया ने ये जो बिल है, ये रेजोल्यूशन जो है वो पास कर दिया है। तो इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग दैट इट इज प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सोलेस टू अस। ओके, अब देखो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, सार्क समिट होने वाली है, ठीक है। और अफगानिस्तान जो है वो सार्क का मेंबर है। नाउ सार्क इज अ रीजनल ग्रुप, सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये एक रीजनल ग्रुप है जिसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं और उनमें से एक अफगानिस्तान है। इंडिया भी एक मेंबर स्टेट है। मैं और आपसे सार्क के बारे में बात करूंगा। इसकी समिट होने वाली है। और अब अफगानिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट तो है नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो तो अब जा चुकी है और अब तालिबान हैज़ कैप्चर्ड अफगानिस्तान। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सार्क समिट में क्या होने वाला है, क्या अफगानिस्तान को इनवाइट किया जाएगा, क्या अफगानिस्तान सार्क का मेंबर बना रहेगा या कुछ और बात होगी। तो इसको लेकर के आर्टिकल है, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये कहता है कि सार्क समिट होने वाली है नेक्स्ट मंथ इस्लामाबाद में, यानी पाकिस्तान में समिट होने वाली है। और होस्ट कंट्री इनवाइट करती है बाकी कंट्रीज को, तो यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट विल इनवाइट, इंडिया विल इनवाइट अदर मेंबर कंट्रीज, ठीक है, जो 8 मेंबर स्टेट्स है। तो ओनस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है कि अब वो अफगानिस्तान को इनवाइट करता है या नहीं करता। एनीवेज पाकिस्तान इज बैकिंग तालिबान, तो इन ऑल लाइकलीहुड दे विल इनवाइट, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कल एक और हुआ कि इंडिया ने भी एक एनवॉय, दीपक मित्तल साहब जो दोहा में थे, इंडिया के एनवॉय, इन्होंने दोहा में तालिबान के लीडर से मुलाकात की। तो अब इंडियन गवर्नमेंट भी धीरे धीरे तालिबान से बात करने लगी है, ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। तालिबान ने ही रिक्वेस्ट की थी कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहते हैं। तो इंडिया ने पहली बार किसी तालिबान लीडर से ओपनली पब्लिकली बात की दोहा में। तो हो सकता है कि इंडिया भी अलाउ करे, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट द तालिबान कैन क्रिएट इन काबुल। तो अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी कि तालिबान में एक्चुअली सरकार बनती किसकी, अफगानिस्तान में सरकार बनती किसकी है, उसमें तालिबान के लीडर्स होते हैं, उसमें हक्कानी ग्रुप के लीडर्स होते हैं या नहीं होते हैं, उसमें फॉर्मर अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो थी उसमें से किसी को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता। तो उस गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे जाकर के डिप्लोमेसी में क्या होता है, ठीक है। अब ये इश्यू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशंस में भी अफगानिस्तान मेंबर है, तो यूएन में भी क्या तालिबान के आतंकवादी बैठेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो अपडेट है ये उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अफगानिस्तान वाज एडमिटेड इनटू सार्क एज द 8th मेंबर इन 2007। तो अफगानिस्तान वाज द लास्ट मेंबर। 2007 में अफगानिस्तान को सार्क में ऐड किया गया था हामिद कारज़ई गवर्नमेंट के अंडर। उससे पहले सार्क में 7 मेंबर कंट्रीज थे। अब मैं आपको सार्क के बारे में थोड़ी और डिटेल देता हूं। देखो, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन में 8 मेंबर स्टेट्स हैं। अब 8 मेंबर स्टेट्स याद रखने का मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। देखो, इंडिया के मैप को माइंड में लो और देखो, वेस्ट की तरफ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया,
वेस्ट से, ठीक है, राजस्थान की तरफ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और ईस्ट से देखोगे तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो कितनी कंट्रीज हो गई? 6। 3 वेस्ट से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ईस्ट में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, और नीचे श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, कितनी मेंबर कंट्रीज हुई? 8। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, 8 मेंबर कंट्रीज है। अफगानिस्तान वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? काठमांडू इन नेपाल। ठीक है, तो सार्क के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने लिस्ट की है। फॉर्म्ड इन 1985, हेडक्वार्टर्स मैंने आपको बताई दिए, मेंबर स्टेट्स मैंने बता दिए। इसके सेक्रेटरी जनरल एक श्रीलंकन डिप्लोमेट है, इसाला रुवान विराकुन, ठीक है, जो इस समय है। अब देखो, किसी जमाने में सार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, पिछले कुछ सालों में इंडिया और पाकिस्तान के फ्रिक्शन के चलते हुए ज़्यादा सार्क में एक्टिविटीज़ हो नहीं रही है। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से पिछले कुछ सालों में बिम्स्टेक हैज़ बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन सार्क, जो बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ इट्स लीगेसी इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे। अच्छा, अब देखो, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट है। चाइना ओपन्स फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू इंडियन ओशन। तो चाइना ने एक नया रूट बनाया है अपने गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें सी भी है, रोड भी है, रेल भी है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक सामान जाने के लिए तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होंगे। तो ये कनेक्ट करेगा सिंगापुर, म्यांमार और चाइना को। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ आप एक मैप देख पा रहे हो। तो यहाँ से इसे अंडमान सी, इंडियन ओशन से, यहाँ से सिंगापुर से सामान आएगा। म्यांमार में यांगोन पोर्ट है। ठीक है, तो बाय सी यांगोन पोर्ट में सामान आएगा। फिर यांगोन से लिंकैंग तक रेलवे लाइन, बाय रोड है। तो यहाँ पर बाय सी रूट यांगोन तक पोर्ट पर सामान आएगा। यहाँ से बाय रोड लिंकैंग तक, ये म्यांमार चाइना बॉर्डर पर लिंकैंग है। ठीक है, अभी तक गुड्स म्यांमार में, लिंकैंग जो चाइना बॉर्डर पर है, म्यांमार चाइना बॉर्डर पर है, यहाँ तक गुड्स बाय रोड जाएंगे, म्यांमार में बाय रोड जाएंगे। और फिर लिंकैंग से चेंगदू, चेंगदू जो है वो चाइना में एक बहुत बड़ा ट्रेड प्रोविंस है। यहाँ गुड्स जो है बाकायदा रेलवे लाइन बिछ गई है लिंकैंग टू चेंगदू, जो गुड्स को बाय रेल ट्रांसपोर्ट करेगी। यानी सिंगापुर से चाइना तक सामान कैसे पहुंचा? पहले बाय सी, फिर बाय रोड और फिर बाय ट्रेन। तो ये जो रेलवे लाइन है इसका भी इनॉग्रेशन हुआ। फर्स्ट शिपमेंट ऑन अ न्यूली लॉन्च रेलवे लाइन फ्रॉम म्यांमार बॉर्डर टू चेंगदू was delivered this week. This involves a sea road rail link. Goods from Singapore reached Yangon port, then were transported by road to Linkang, and the new railway lines that runs from the border town of Linkang to Chengdu then delivered the goods. तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग। पहले बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाय सी टू म्यांमार, फिर म्यांमार में बाय रोड ट्रेवल कर रहे हैं म्यांमार चाइना बॉर्डर तक, और फिर चाइना बॉर्डर में लिंकैंग से चेंगदू तक रेलवे लाइन है। ठीक है, टू द ट्रेड हब। This passage connects the logistics line of Singapore, Myanmar and China and is currently the most convenient land and sea channel linking the Indian Ocean with Southwest China. ये पूरे रूट में तकरीबन 20 से 22 घंटे की बचत हो जाती है ना? तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, प्लीज मेक अ नोट। अच्छा, अब देखो रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए। 5 रेसिपिएंट्स को मिले इस बार। ठीक है, 5 में हिंदुस्तानी तो कोई नहीं है इस बार। ठीक है, नॉर्मली एशिया में रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड्स दिए जाते हैं एशियंस को। ठीक है, इस बार किसी इंडियन को नहीं मिला है, बट 5 रेसिपिएंट्स में जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे डॉक्टर फिरदौसी कादरी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये बांग्लादेश में एक वैक्सीन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने काफ़ी हेल्थ केयर में काम किया है। तो इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए इस साल रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया। नाम याद रखें, डॉक्टर फिरदौसी कादरी। इसी तरह से पाकिस्तान से मोहम्मद अमजद साकिब, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रन करते हैं। माइक्रो फाइनेंस का क्या काम होता है? ऐसे लोगों को जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिनकी पहुंच बैंकिंग तक नहीं है और बैंक्स की पहुंच जिन तक नहीं है, ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड करवाना और ऐसे लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। तो इनको ये अवार्ड मिला है। उसके अलावा 3 और विनर्स हैं। रॉबर्टो बेलोन जो एनवायरमेंटलिस्ट है फिलीपींस से, फिर स्टीवन मंसी जो रेफ्यूजी असिस्टेंस की फील्ड में काम किया है साउथ ईस्ट एशिया में, फिर वॉचडॉग इंडोनेशिया जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नेटवर्क है, तो न्यूज़ नेटवर्क है। तो इनको रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए। 5 विनर्स हैं। जो मैंने कहा पहले 2 वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा उनके बारे में न्यूज़ आ रहा है। ठीक है, मगर आप 5 विनर्स के नाम याद रखेंगे। और फिर रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड जो है फिलीपींस के 3rd प्रेसिडेंट थे रेमॉन मैग्सेसे।
और उनकी लीडरशिप को कमेमोरेट करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है क्योंकि एशियंस को मिलता है। तो रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन गिव्स द प्राइज टू एशियन इंडिविजुअल्स अचीविंग एक्सेलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, ऑल्सो रिगार्डेड एज एशियन वर्जन ऑफ द नोबेल प्राइज। ठीक है, तो रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड्स के बारे में जाना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। सो नाउ विल लुक एट द एडिटोरियल फॉर टुडे। ठीक है, इट्स टाइम टू बिल्ड ब्रिक्स बेटर। ठीक है, तो ब्रिक्स जो एक रीजनल ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुप है, कंसिस्टिंग ऑफ 5 कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज है और ब्रिक्स समिट होने वाली है। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले के हिंदू एनालिसिस वीडियो में भी बताया था कि ब्रिक्स समिट होने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर। और ब्रिक्स समिट में क्या क्या किया जा सकता है, क्या इंडिया की प्रायोरिटीज होगी, इसका इस बारे में आर्टिकल आया है। पर थोड़ा सा ब्रिक्स का बैकग्राउंड भी दिया है, थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो 2006 में ब्रिक्स शुरू हुआ था और इनिशियली ब्रिक था साउथ अफ्रीका, बाद में 2010 में ऐड हुआ। अदरवाइज इनिशियली ब्रिक था ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, अच्छा, इन 5 कंट्रीज की टर्न बाय टर्न प्रेसिडेंसी आती है, चेयरिंग आती है। फॉर एग्जांपल इंडिया 2012 और 2016 में भी होस्ट कर चुका है ब्रिक्स समिट। तो एवरी 4 ईयर्स 5 ईयर्स एक एक कंट्री का टर्न आता है। तो इस बार 2021 समिट जो है वो इंडिया चेयर कर रहा है वर्चुअली। ठीक है, अच्छा, अब ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, देखो ब्रिक्स जो है वो इमर्जिंग कंट्रीज के कॉन्सेप्ट के तौर पर इनिशियली इंस्टॉल किया गया था और कहा गया था कि हम ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ग्लोबल नॉर्थ मतलब कंट्रीज लाइक इंडिया, रशिया, चाइना। ठीक है, और फिर साउथ में देखा जाए तो ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स 42% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ठीक है, यानी ब्रिक्स कंट्री में खाली इन 5 देशों में दुनिया की 42% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, 30% ऑफ द लैंड एरिया, टोटल ग्लोबल लैंड एरिया का 30% सिर्फ इन 5 देशों में है। 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 24%, ऑलमोस्ट 1/4 सिर्फ ये 5 कंट्रीज कमांड करती हैं। एंड 16% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आप इमेजिन कर लो कि ये 5 कंट्रीज पूरी दुनिया के लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है और अगर ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करके चले तो कितना कुछ अचीव किया जा सकता है। इसी विजन के साथ ब्रिक्स को शुरू किया गया था। ठीक है, अब इंडिया जब इसे चेयर कर रहा है तो इस कॉन्फ्रेंस में जो समिट होने वाली है उसमें क्या इंडिया करना चाहेगा, क्या इंडिया की प्रायोरिटीज रहेगी। तो 4 प्रायोरिटीज इंडियन गवर्नमेंट ने आउटलाइन की है। पहला क्या है, रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो दुनिया भर में बड़े मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, यूनाइटेड नेशंस, हम चाहते हैं कि इन सब में रिफॉर्म्स हो, इन सब में इन कंट्रीज को वॉइस को और ज़्यादा बुलंद किया जाए, ज़्यादा इनको करने का मौका दिया जाए। तो ये पहला एजेंडा रहेगा। दूसरा ऑब्वियसली इंडिया का फेवरेट टॉपिक, कॉम्बैट टेररिज्म। ठीक है, अब टेररिज्म से इंडिया हमेशा परेशान रहा है, मगर अभी जो अफगानिस्तान में हुआ है उसके बाद तो पूरी दुनिया का फोकस टेररिज्म पर ही है। तो टेररिज्म डेफिनेटली एक टॉपिक रहेगा। इनफैक्ट ब्रिक्स का एक प्लान है कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान अडॉप्ट करना चाह रही है। काफ़ी समय से बात चल रही है और हो सकता है इस बार ये मटीरियलाइज हो जाए, जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज स्पेसिफिक स्टेप्स आउटलाइन करें कि किस तरीके से वो टेररिस्ट से निपट सकते हैं, टेरर फाइनेंसिंग पे अटैक कर सकते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल फोरम्स के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेन एजेंडा रहेंगे और उसके अलावा 2 एजेंडा रहेंगे एनवायरनमेंट के रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करना थ्रू टेक्निकल सॉल्यूशंस और प्रमोटिंग कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, जो कि कोविड के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल है, बट दैट्स व्हाट दीज समिट विल बी एमिंग एट। तो ये 4 इंडिया की प्रायोरिटीज होंगी। अच्छा एडिटोरियल है, आप आज के न्यूज़पेपर एडिटोरियल में पढ़ सकते हैं, हाउ टू मेक ब्रिक्स बेटर। इट टॉक्स अबाउट ब्रिक्स समिट और हमारे लिए कुछ की फैक्ट्स निकल के आ जाते हैं उसमें से, जैसे ब्रिक्स से अराउंड डेटा और इंडिया और ब्रिक्स कंट्रीज, बाकी कंट्रीज क्या कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब इकोनॉमी रिलेटेड अपडेट देखते हैं। ये फ्रंट पेज पे आर्टिकल है आज, इकोनॉमी ग्रोस 20.54% इन Q1 लैग्स प्री पेंडेमिक लेवल। देखो आर्टिकल आज के हिंदू फ्रंट पेज पर है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पे ना इंडियन एक्सप्रेस पे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है, आप उसको पढ़ें। मैंने उसके ही कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए हैं, उसमें बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है क्या हुआ है। तो बेसिकली जीडीपी डेटा आया है। अब बिफोर मैं कुछ भी आगे बढ़ूँ, आपको थोड़ा सा मैं जीडीपी के बारे में आइडिया दे देता हूँ। जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्पेशली जो स्टूडेंट्स नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड्स हैं उन लोगों को शायद थोड़ा एलियन लगता होगा कि अरे सर ये जीडीपी बात हो रही है, जीवीए बात हो रही है, ये सब चीज़ें हैं क्या। तो मैं पहले आपको थोड़ा एक बेसिक बता देता हूँ कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है। इट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ all the goods and services produced within the domestic territory of a country
इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। तो यानी आपके देश की बाउंड्री के अंदर अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया उनकी फाइनल वैल्यू अगर ऐड कर दी जाए तो जीडीपी वापस से बताऊं, बता दो, है ना, फिर वो वाला पार्ट कट कर देना। ओके, तो हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीडीपी क्या होता है, ठीक है। स्पेशली जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अक्सर ये तकलीफें आती है जब ये इस तरह का टॉपिक पढ़ते हैं कि सर जीडीपी लिखा हुआ आ रहा है, जीवीए लिखा हुआ आ रहा है, इनका मतलब क्या है, इनके मायने क्या है, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल गए आप। बेसिकली बहुत आसान शब्दों में बताया जाए तो आपके देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं एक साल में, अगर हम जो भी आपके देश की बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी हम फाइनल वैल्यू ले लें, उनको वैल्यू टर्म्स में ले लें, तो ऐड कर लें तो हमारा जीडीपी निकल के आ जाता है, जो बेसिकली ये बताता है कि आपके देश में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है। देखा, वर्ड में भी लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है। अब जो जीडीपी डेटा है ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन टू बी प्रिसाइज, ये साल में 4 बार हर क्वार्टर में डेटा रिलीज करती है, ठीक है। 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड देन जनवरी टू मार्च, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल टू जून, उसका डेटा अभी रिलीज हुआ है, ठीक है। और डेटा में क्या निकल के आया है कि Q1 of 2021-2022 India's GDP grew by 20.1% while the gross value added grew by 18.8%। अब देखो, ऐसे नंबर देख के तो बहुत खुशी होती है कि 20% हमारा जीडीपी बढ़ गया, वाओ, यानी पिछले क्वार्टर से 20% हमारा जीडीपी बढ़ गया, यानी पिछले क्वार्टर में हमने जितना प्रोडक्शन किया था उससे इस साल 20% ज़्यादा किया है, तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है ना। मगर मैं आपको बता दूं कि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये 25% नीचे गिरा था, ठीक है। तो 25% नीचे गिर के 20% ऊपर बढ़े, तो यानी आप कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़े हैं। तो ये नंबर्स की जादूगरी है। परसेंटेज टर्म्स में आपको लगता है कि आपने कुछ ग्रोथ हासिल करी है, बट एक्चुअली अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम देखें, एब्सोल्यूट वॉल्यूम देखें, तो ये कुछ बहुत इंप्रेसिव नंबर नहीं है, ठीक है। जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड दोनों काफ़ी सब्सटेंशियली गिरे थे पिछले क्वार्टर में। तो जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि ये जो हमें ग्रोथ दिख रही है ये इट इज़ बिकॉज ऑफ अ लो बेस इफेक्ट, क्योंकि आपका बेस इतना इरोड हो गया है तो थोड़ी सी भी ग्रोथ आपको ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट के क्लेम्स आपको दिखेंगे न्यूज़पेपर में कि वी शेप रिकवरी हो रही है, वैसा वैसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, इकोनॉमी थोड़ा उठने लगी है, बट स्टिल वी आर नॉट टचिंग द प्री पैंडेमिक लेवल्स, यानी आप ये ना समझें कि हम उसी लेवल पर आ गए हैं जिस लेवल पे कोविड से पहले इकोनॉमी चल रही थी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, हम उठने लगे हैं मगर पूरी तरह से नहीं उठे हैं, ठीक है। अब एक और टर्म यहाँ पे आ जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। सर तो आप बोलोगे सर आपने जीडीपी तो समझा दिया, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? देखो, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में देखें तो ये इक्वेशन बनती है जीडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस टैक्सेस अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल हम ऐड कर देते हैं, बेसिकली जीडीपी में से आप गवर्नमेंट का रोल कम कर दो या जीवीए में गवर्नमेंट का रोल ऐड कर दो तो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो जीडीपी क्या होगा? जीवीए प्लस टैक्सेस अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट माइनस सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस अर्न किए वो जीवीए में ऐड कर देते हैं और सब्सिडीज जो प्रोवाइड किए वो माइनस कर देते हैं, तो आपका जीडीपी आ जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अब आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी इसमें लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर टैक्सेस आर मोर देन सब्सिडीज तो जीवीए विल बी बेटर देन, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट अर्न मोर फ्रॉम टैक्सेस देन व्हाट इज स्पेंट ऑन सब्सिडीज, जीडीपी विल बी हायर देन जीवीए, और वाइसे वर्सा। अगर ये ज्यादा होगा तो जीवीए बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन देता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड पावर का कितना रहा, एग्रीकल्चर का कितना रहा, ठीक है, ट्रेड का कितना रहा, ठीक है। तो अभी ग्रॉस वैल्यू एडेड सिर्फ 2 सेक्टर्स का बढ़ा है 2019 के लेवल्स से, सिर्फ 2 सेक्टर्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड बढ़ा है, वो है एक एग्रीकल्चर, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी बिल्स। सिर्फ इन 2 एरियाज में ग्रॉस वैल्यू एडेड बढ़ा है, बाकी सब में ग्रॉस वैल्यू एडेड कम है, विच मीन्स हमारी इकोनॉमी अभी भी रिकवर होना बाकी है। तो मोटा मोटी इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? मोटा मोटी ये समझें कि हमारी इकोनॉमी अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, रिकवर होनी शुरू हुई है, बट वी आर येट टू टच इवन द प्री पैंडेमिक लेवल्स। मतलब ग्रोथ तो छोड़ दो, अभी दूर की बात है, इवन हमें पहले के लेवल पर पहुंचने में भी अभी थोड़ा टाइम
लगेगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट सेज टू यू। ठीक है, नंबर्स तो ये बता रहे हैं। अच्छा, फिर एक बिजनेस रिलेटेड न्यूज आई। पेयू करके एक डच कंपनी है, प्रोसेस उसकी सब्सिडरी है पेयू। इन्होंने एक इंडियन कंपनी बिलडेस्क को एक्वायर किया 4.7 बिलियन डॉलर्स में। ये डिजिटल पेमेंट्स में किया गया सबसे बड़ा M&A है इंडिया में। ठीक है, तो डच टेक इन्वेस्टमेंट फर्म प्रोरस सेड इट्स सब्सिडरी पेयू हैड एग्रीड टू एक्वायर इंडियन पेमेंट्स गेटवे बिलडेस्क। देखा होगा आपने, कभी आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हो तो बिलडेस्क का प्लेटफॉर्म खुलता है। ठीक है, काफी बार बहुत फेमस पेमेंट गेटवे है। तो पेयू इससे पहले भी कुछ एक्विजिशंस कर सकता है, जैसे सिट्रस पे, पेसेंस, वेबमो, ये कुछ ऑलरेडी कंपनीज इन्होंने एक्वायर किए और अब इन्होंने बिलडेस्क को एक्वायर करने की बात कर दी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो डिजिटल पेमेंट्स का मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल RBI का डेटा ये कहता है कि 2019 में हमारे डिजिटल रिटेल पेमेंट्स 24 बिलियन थे, जो कि 2021 में बढ़कर के 44 बिलियन हो गए, यानी 80% से ज्यादा ग्रोथ हुई है डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। तो ऑब्वियसली जब डिजिटल पेमेंट्स बढ़ेंगे तो डिजिटल पेमेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाले ज्यादा पैसे कमाएंगे ही। दैट इज व्हाई दिस एक्विजिशन हैज टेकन प्लेस। इनफैक्ट RBI कहता है कि अगले 3 सालों में 200 मिलियन न्यू यूजर्स विल अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स, यानी अगले 3 सालों में 200 मिलियन लोग और होंगे जो अब डिजिटल पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं बट डिजिटल पेमेंट्स करने लगेंगे। तो ऑब्वियसली जब इतना बड़ा अनटैप्ड मार्केट है तो मार्केट में अट्रैक्टिव बनेगा ही, राइट। तो हमारे काम की क्या चीज है? पेयू हैज एक्वायर्ड बिलडेस्क। ओके, और ये थोड़ा बहुत डेटा। अच्छा, अब स्पोर्ट्स की दुनिया के बारे में बात करते हैं। पैरालंपिक्स चल रहे हैं, कुछ अपडेट्स मैंने आपको कल बताए थे। मंडे को हमें 5 मेडल मिले थे, ट्यूसडे और कुछ मेडल लेकर के आया। ठीक है, मंडे को 5 मेडल मिलने के साथ टोटल कितने हो गए थे? 7। कल ट्यूसडे 3 मेडल और मिले, टोटल हो गए 10, यानी डबल डिजिट में पहुंच गए हम। तो ये ऑब्वियसली इससे पहले भी 3 मेडल मिलने से पहले भी इंडिया का सबसे सक्सेसफुल पैरालंपिक इवेंट बन चुका था, और इस पे तो हमें और कुछ बेहतर न्यूज़ मिलती ही जा रही है। तो कल जो 3 मेडल मिले उनमें से 2 मेडल हमारे हाई जंप में आए। मरियप्पन थंगवेलु सिल्वर मेडल लेकर आए, फिर शरद कुमार ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, और फिर एक शूटर है हमारे सिंगराज अडाना साहब, ये भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर के हमें 10 मेडल मिल चुके हैं, कल 3 मेडल्स और मिले। तो पैरालंपिक्स इज ब्रिंगिंग मोर जॉय टू द इंडियंस। अच्छा, क्रिकेट। तो BCCI ने IPL के 2 नए फ्रेंचाइजीज के लिए टेंडर्स इनवाइट कर दिए। ठीक है, ये IPL में पहले अनाउंस कर दिया गया था कि जो नेक्स्ट IPL होगा IPL 2022, उसमें हम 2 टीम्स और खिलाएंगे, 2 फ्रेंचाइजीज और ऐड होंगी। अब उन फ्रेंचाइजीज को चुनने के लिए बिड इनवाइट कर दी गई है। तो ये प्रोसेस चलेगा, अब कंपनीज उसमें बिड करेंगी, जिनकी बिड फाइनलाइज होगी वो 2 नई फ्रेंचाइजीज शामिल होंगी। तो नया जो IPL होगा, नेक्स्ट IPL होगा, उसमें 74 गेम्स होंगे। ठीक है, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, मोर फियर्स। ठीक है, तो अ गुड न्यूज़ फॉर क्रिकेट लवर्स। अच्छा, डेल स्टेन अनाउंस रिटायरमेंट। ओके, ये 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बट ठीक है, न्यूज़पेपर में थे आज, कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो डेल स्टेन हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट। डेल स्टेन साउथ अफ्रीका से फास्ट बॉलर थे। ठीक है, और लेजेंडरी फास्ट बॉलर थे, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। साउथ अफ्रीका की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे ये टेस्ट क्रिकेट में, 439 विकेट्स इन्होंने लिए। एंड ही हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। IPL में भी खेल रहे थे। ठीक है, सो नाउ ही हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ऑल राइट गाइस, सो ऑन दिस नोट आई विल रैप अप टुडेज सेशन। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अच्छा, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। सम ऑफ यू हैव रिस्पॉन्डेड एंड आई फील वेरी नाइस अबाउट इट। Seoul is the capital of South Korea and president is Moon Jae-in. Preeti, Ishan and some others are also there. It's difficult to remember all the names, but good. See, it's good to see that some of you are responding in the comment section, but बाकी लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स में उसको आंसर करें। क्यों ऐसा? क्योंकि वंस यू गेट इनटू दिस हैबिट ना, तो आप रोज एक आंसर सॉल्व करने की हैबिट में आ जाएंगे, और उस आंसर को अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उस पर कुछ सर्च करेंगे। सर्च करते वक्त शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाए। ठीक है, तो मेक इट अ हैबिट। ठीक है, इट विल टेक 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम मैक्सिमम। ठीक है, बट इट विल अर्न यू सम प्रेशियस मार्क्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब आज का क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे BCCI ने IPL के लिए 2 नई फ्रेंचाइजीज इनवाइट किए। तो आप मुझे BCCI प्रेसिडेंट के बारे में बताएं, हु इज़ द BCCI प्रेसिडेंट। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और फिर कल बात करेंगे विद सम न्यू स्टोरीज, न्यू इवेंट्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।